Assalamu alaikum students. Today we will start our next topic of chapter number 5, that is solid state. Solids are very important state of matter, and in solids the particles are very closely packed together, and there are present very strong attractive forces in solids. The particles vibrate about their fixed positions. सो सॉलिड्स का आपको पता है कि सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम. सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं. दे आर इनकम्प्रेसिबल. व्हेन यू प्रोवाइड हीट एनर्जी टू द सॉलिड्स, जब आप सॉलिड्स को हीट करते या इसको आप कोई भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, द प्रोसेस विल टेक्स प्लेस विच इज़ नोन एज मेल्टिंग. द पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी. दे स्टार्ट टू वाइब्रेट फास्ट. When they gain so much of the kinetic energy which overcome their attractive forces, then structure of solid collapse हो जाता है. It will turn into liquid. Liquid में देखें particles groups की form में भी होते हैं and they are not very tightly packed together. Very attractive forces are weaker as compared to solid. So conversion of solid into liquid, this process is called as melting. It takes place at constant temperature. A constant temperature at which solid changes into liquid is called as melting. However, when you reverse the process, the process at constant temperature at which liquid change into solid, उस process को हम freezing कहते हैं. For example, जब आप कोई भी liquid उठा के उसको low temperature के ऊपर रखते हैं, for example आप water को freezer में रख देते हैं, then the particles will lose their kinetic energy. अब particles दोबारा अपनी kinetic energy lose करेंगे. they start to come close और वो दोबारा एक दूसरे के close आना शुरू हो जाएंगे. so ये liquid state high energy state है. this is solid state is low energy state. so दोबारा particles एक दूसरे के close आ जाएंगे and liquid will turn into solid. so these two processes will take place in liquids, that is melting and freezing. And melting जो होता है, it is a very important property. It also helps us to find out the purity of the substance, क्योंकि pure solid का melting point हमेशा fix होता है, लेकिन impurities जो होती हैं वो melting point को low करती हैं. So girls, this is very very important कि melting और freezing का process में difference ये होता है कि melting में particles kinetic energy gain करते हैं and they will turn into liquid. Liquids में particles kinetic energy lose करके solid में convert हो जाते हैं. So these are the two very important processes. Next process is very important in case of solid state, that is sublimation. Sublimation is the process in which some solids on heating directly changes into gas without passing into the liquid state. कुछ ऐसे solids होते हैं जिनको जब हम heat करते हैं तो वो directly gaseous state में change हो जाते हैं without converting into the without passing through the liquid state. इन एग्जाम्पल्स, ऐसे सॉलिड्स को हम सब्लाइम सॉलिड्स भी कहते हैं. इनकी एग्जाम्पल्स हैं आयोडीन, बेंजोइक एसिड, अमोनियम क्लोराइड. दीज आर द कॉमन. इसके अलावा इसकी एग्जाम्पल है नेफ्थलीन. सो दीज आर द सॉलिड्स विच ऑन हीटिंग डायरेक्टली चेंजेस इनटू गैस विदाउट पासिंग इनटू द लिक्विड स्टेट. These are iodine, benzoic acid, ammonium chloride and naphthalene. For example, अभी हम करते हैं sublimation of iodine. If you take a beaker, अगर आप एक beaker ले लेंगे और उस beaker के अंदर you will take iodine. अगर आप इसके अंदर iodine के crystals लेंगे, iodine का कलर होता है bluish black iodine crystals आप ले लें या iodine solid आप ले लें. Sublimation यूजली हम करते हैं फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ सॉलिड्स. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक. आयोडीन सॉलिड आप लेंगे, इसको अगर आप हीट करते हैं, यू विल सी कि इट्स वेपर्स विल राइज. और अगर आप इसके ऊपर कोई भी वाज ग्लास इन्वर्ट करके रख दें बीकर के ऊपर, यू विल सी आफ्टर सम टाइम यहाँ पे आपको पर्पल कलर के वेपर्स नज़र आएंगे. पर्पल वेपर्स विल राइज. और जब आप उसकी हीटिंग बंद करके इसको साइड पे करेंगे, दे विल कंडेंस. पर्पल वेपर्स जब कंडेंस हो जाएंगे, यू विल सी दैट जो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होंगे वो आपके पास यहाँ वायलेट
वायलेट ब्लैक कलर के क्रिस्टल्स आपको प्योर आयोडीन के नज़र आएंगे. सो प्योर आयोडीन विल ऑब्टेन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. सो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. इसके अलावा आपकी बुक में एक एक्टिविटी 5.4 दी हुई है. उसमें आपको दिया हुआ है सब्लिमेशन ऑफ एयर फ्रेशनर. तो हम स्मॉल पीसेस ऑफ एयर फ्रेशनर को लेंगे और शैलो कंटेनर लेंगे, 2 क्लीन प्लास्टिक कप्स ले लेंगे, हॉट वाटर आइस लेंगे. तो आप एयर फ्रेशनर के पीसेस जो होंगे वो भी इसी तरह सब्लाइम करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आप 2 ग्लासेस इन्वर्ट करेंगे. एक ग्लास के अंदर आप ले लेंगे, ये आपकी डायग्राम में भी शो हुआ है, स्मॉल पीसेस ऑफ एयर फ्रेशनर हम करेंगे. सो एयर फ्रेशनर लेंगे, एक हॉट वाटर ले लेंगे कंटेनर के अंदर, और एक और इसके ऊपर ग्लास इन्वर्ट करेंगे, इसके अंदर आप आइस ले लेंगे. अब होगा ये कि एयर फ्रेशनर नीचे हॉट वाटर होगा तो एयर फ्रेशनर के पीसेस एनर्जी गेन करके वेपर्स में कन्वर्ट होंगे और इस ग्लास के साथ जाके चिपक जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डाउन है. सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू गैस. तो यहाँ पे आपको एयर फ्रेशनर के पीसेस जो जिस ग्लास के अंदर वाटर है उसके साथ चिपके हुए नज़र आएंगे. दिस इज़ द सब्लिमेशन ऑफ एयर फ्रेशनर. So girls, these are the 2 very important properties of solid state. One is मैंने आपको बताया melting and freezing है, और next is sublimation. Sublimation में ये क्या होता है कि solid directly गैस में change होते हैं, and this is a very important technique. Without passing into the liquid state, solid directly convert into gas. और इस method को हम use करते हैं for the purification of solids.